Now friend, here we will see our next topic, which is here given, governors at the local level. It is extremely difficult to carry out the governors of the entire nation from a single place, as the central government has too many responsibilities. We know that friend, India is a very vast country, and that's why it is not possible to administrate or manage from a single place. Along with that, central government has many responsibilities. The power is decentralized with the objective to timely solve various problems, needs, expectations, and aspirations of the people. We have earlier discussed about that power is decentralized among different governments with the purpose to solve various problems, needs, expectations, and aspirations of the people. By decentralizing the power, the administration can be carried out easily and efficiently. कि पावर्स को जो डिसेंट्रलाइज किया गया है तो उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है तो वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली और इजीली हम कर सकते हैं. At the local level, the institute of local self-governors have emerged. When the administration of a village, town, or city is carried out by the representative of the people elected by the locals in the local institutions, then such organizations are called institutes of local self-governors. कि हम ये जानते हैं कि जो विलेज है, टाउन है, सिटी है, तो वहाँ पे जो लोकल पब्लिक है तो वो लोकल पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन में वोट देकर उनको इलेक्ट करती है. उसके बाद उनको एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वो बनाते हैं और वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसको हम लोकल सेल्फ गवर्नर्स कहते हैं. For administrative efficiency of geographical regions, the responsibility and functions of the government are divided to the local organizations. कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है तो उसको अच्छी तरह से अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो भी फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड कर दी गई है. Similarly, the municipality, municipal corporation are the institutes of local self-governors of urban area, and for villages one can find gram panchayat, taluka panchayat and district panchayat. तो उसी तरह से जो भी अर्बन एरिया है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, कि जो वहाँ पे एक लोकल सेल्फ गवर्नर्स है. जबकि हम विलेज की बात करें तो विलेज में जो लोकल सेल्फ गवर्नर्स है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है. Institutions of local self-governors give the training which is available for election, voting, duties, responsibilities, administration and ruling and opposing parties. कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नर्स है तो वो इलेक्शन, वोटिंग, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है या फिर जो रूल्स कैसे करना है तो उसकी ट्रेनिंग जो मिलती है तो वो लोकल सेल्फ गवर्नर से मिलती है. It gives an opportunity of self-development, as all the policies are implemented at the local level first. It gives a chance to improve the lacunas at the upper levels too. यानी कि ये सब जो पॉलिसीज है तो वो लोकल लेवल पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट होती है और उसके बाद वो सक्सेस होती है या नहीं होती है तो उसका रेशियो वहाँ से निकलता है और कुछ जो चेंजेस करना हो तो वो सेंट्रल लेवल तक वो चेंजेस हो सकता है. Therefore, local self-rule organizations are known as the training schools and laboratory of constitutional improvement in our democracy. और इस तरह से हम लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसको हम एक ट्रेनिंग स्कूल कह सकते हैं, एक लेबोरेटरी कह सकते हैं कि जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट होता है हमारी डेमोक्रेसी में तो उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है तो वो लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नर थे तो वहाँ से उसका एक्सपेरिमेंट होता है कि वो सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा हमें वहाँ से पता चलता है. In 1992, in the entire country, similar Panchayati Raj and urban institutions of local self-governors came into existence. कि 1992 में हमारी पूरी कंट्री में जो पंचायती राज है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था
और साथ में जो अर्बन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नर्स है तो उसका भी एग्जिस्टेंस 1992 में ही हुआ था। थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। फर्स्ट नंबर, institutions of local self-governance at the rural level. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat is an administrative structure. Each organization is mutually joined from top to bottom. So friend, Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat are an administrative structure and all these organizations are mutually joined from top to bottom at all the levels of the Panchayati Raj in order that the local developmental tasks, schemes and welfare-oriented programs are carried out efficiently. These organizations are provided with required funds and means कि पंचायती राज के ये सभी जो लेवल्स है तो वहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं और उसको एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड फंड्स है, जो भी रिक्वायर्ड गुड्स है तो वो प्रोवाइड किया जाता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन से। There is a chief of the district panchayat and various chairmen of various committees of the district panchayat, whereas the administrative head is the district development officer means DDO, and the main office of the district panchayat is situated at the district headquarters. कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एक चीफ होते हैं और अलग अलग कमिटीज के अलग अलग चेयरमैन भी वहाँ पे होते हैं, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पे हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनका जो ऑफिस है तो उनकी जो ऑफिस है तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहती है। Similarly, the leader of the elected wing of the Taluka Panchayat is called the president and the head of the administrative wing is called Taluka Development Officer, means TDO. तो उसी तरह से जो तालुका पंचायत है तो वहाँ पे भी जो लीडर होते हैं तो उसको प्रेसिडेंट कहते हैं और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो लीडर होते हैं तो वो TDO होते हैं, यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। At lower level, Sarpanch is the representative elected by the people and the administrative head is the Talatika minister and he handles the administration of the panchayat. कि जबकि हम लोअर लेवल की बात करें यानी कि जो सबसे नीचे है तो वहाँ पे जो सरपंच रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसको लोगों ने इलेक्ट करके रिप्रेजेंट बनाया हुआ होता है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है तो वो तलाटी का मिनिस्टर है कि जिसको पंचायत में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना होता है। The village in which the election and the sarpanch are unanimously elected are declared as Samras village and they are honored by a prize. यानी कि जो भी विलेज ऐसा है कि वहाँ पे इलेक्शन जो है तो वहाँ पे सरपंच अनएनिमियसली यानी कि बिना इलेक्शन के ही डिक्लेयर किया जाता है या फिर इलेक्ट हो जाता है जो विलेजर्स पीपल के जरिए, तो उस विलेज को समरस विलेज कहा जाता है और वहाँ पे उस गांव को उस विलेज को कुछ स्पेशल प्राइज देकर उनको ऑनर किया जाता है। Now friends, you can see here one diagram. So this diagram it indicates two important organs of the government which are legislature and executive. So in the topmost you can see Indian Constitution, यानी कि यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन है तो उनसे सबसे ऊपर जो है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको साथ में रखकर उनके नीचे ही ये हमें काम करना होता है। Then you can also see the second organ of the government which is executive. So there are two types of. So first is the central level, then second is the state level, and third is at the institutions of local self-governance. And in the local self-governance we can see there rural level as well as urban level. Now here we will discuss about the governor and below the government you can see here chief minister. यानी कि अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है तो वो गवर्नर है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है तो वो चीफ मिनिस्टर है, तो उनके साथ मिलकर ये काम करना होता है। और ये वहाँ पे हम अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है कि जो रूरल लेवल पंचायती राज होती है जिसमें पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो भी
इलेक्टेड पर्सन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसमें वो मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो वहाँ सेक्रेटेरिएट होती है और सेक्रेटेरिएट के नीचे रहकर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ता है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से होते हैं, तो ऑफिसर्स एट रूरल लेवल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क दिया गया होता है। अगर हम जो लोकल सेल्फ गवर्नर्स की बात करें और वो रूरल एरिया में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, उसके नीचे तालुका पंचायत और लास्ट में ग्राम पंचायत होती है। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में होते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उसके बाद वहाँ पे मेंबर्स होते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिसको डीडीओ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तालुका पंचायत की बात की है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और मेंबर्स है। और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं तो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि टीडीओ होते हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो वो सरपंच ही है और डेप्यूटी सरपंच है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वहाँ पे जो होते हैं तो वो तलाटी कम मिनिस्टर होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नर्स है तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और उसके जो लीडर्स है, उनके जो हेड है तो वो कौन से नेम से जाने जाते हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। Now here we will discuss about another local self-governance institute, which is here given, Urban Institute of Self-Governance. As per the 74th Constitutional Amendment, the urban areas were provided with the Urban Institute of Self-Governance as per the population of the area. So friend, according to the 74th Constitutional Amendment, Urban Institute of Self-Governance is provided to the urban areas, and this institute is provided according to their population. At the first level there is a municipality, at the second level there is a municipal corporation, and the third level there is a Mahanagar Mega City Nigam. So, in the Urban Institute of Self-Governance, there is a municipality at the first level. In the second level, there is a municipal corporation, and in the last, there is a Mahanagar Megacity Nigam. In all the three wings of the Urban Institute of Self-Governance, a mayor is elected from the majority wing. Apart from this, there are chairmen of various committees and corporators as per various wards. कि ये जो अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस है तो वहाँ पे जो भी विंग को मेजोरिटी मिलती है तो उसमें से किसी एक को मेयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। बाकी जो अलग अलग कमिटीज है तो उसके लिए चेयरमैन को इलेक्ट किए जाते हैं और जो वार्ड वाइज कॉर्पोरेटर्स को इलेक्ट किया जाता है। वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वीमेन एंड रिजर्व कास्ट आर मेंटेन। Various committees carry out various responsibilities of many fields in a decentralized manner. कि अलग अलग कमिटीज को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर की जाती है ताकि वो अलग अलग फील्ड में रहकर अच्छा काम कर सके। सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स, रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, civil development, environmental facility, fire department service, education, health, culture and entertainment, cityscape development, development of morgue, crematorium, graveyard, removal of slum, overall development etc. are carried out by the Urban Institute of Self-Governance. यानी कि जो अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस है तो वहाँ पे कौन से काम होते हैं, तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिया गया है तो वो सभी काम जो है तो अर्बन एरियाज में होते हैं और इसके अंडर में रहकर तो जो अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस है तो उसके अंडर में रहकर all are managed by funds collected from people under the public-private partnership means triple P as well as the taxes collected from the people and government grants। यानी कि यहाँ पे जो लिस्ट में दिए गए जो फंक्शंस है तो वो कैसे होते हैं, तो उनका जो फंड है तो वो फंड कहाँ से आते हैं, उनके जो पैसे हैं तो पैसे कहाँ से आते हैं। तो उसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर में रहकर ये फंड्स आते हैं। साथ में जो सिविलियंस के पास जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है तो ये टैक्सेस से होने वाली इनकम से ये सब काम होते हैं और साथ में गवर्नमेंट जो भी ग्रांट प्रोवाइड करती है
तो उससे ये सब जो काम है तो वो सिटी में होते हैं। The administrative head of the municipal corporation is known as the municipal commissioner, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं। Under him there are zonal heads having technical and administrative knowledge and various officers, और उसके अंदर में अलग अलग जोनल हेड्स होते हैं कि जो जिसके पास टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होता है, और उसके साथ भी कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं। When a cordial relation is established between the elected wing and the administrative wing, then many works can be carried out relating to the welfare of the people. यानी कि जो भी इलेक्टेड विंग है और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो दोनों के बीच में अगर एक कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, यानी कि अच्छा सा रिलेशन दोनों के बीच में है, तब जाकर लोगों का जो वेलफेयर वर्क है तो वेलफेयर वर्क अच्छी तरह से हो सकता है। Now friend, here we will see about another important organ of the government which is here given, judiciary. The Constitution of India has accepted the ideals that all its citizens should get social, economic and political justice, thereby a just and equitable social order can be established. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडियल्स को एक्सेप्ट किया है कि उनके जो सिटीजन है तो उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, जिसके कारण एक प्रॉपर सोशल ऑर्डर जो है तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो सके। If any person breaks any law, then he is either punished or fined by the judiciary. यानी कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी लॉ को तोड़ता है या वायोलेट करते हैं तो उसको पनिशमेंट मिलती है या फिर उसको फाइन मिलता है। यानी कि उनकी जो राइट्स है तो वो जुडिशरी की है कि उनको पनिशमेंट देती है या फिर उनको फाइन देते हैं। The judiciary checks whether the laws are in accordance with the constitutional provision, and if the law is not consistent with the constitution, it declares the law unconstitutional and void. यानी कि जुडिशरी का काम ये भी है कि जो कोई भी लॉ बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक है या नहीं है। अगर ऐसा है कि कोई भी लॉ बना हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अगेंस्ट में है तो जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है और उसको वॉइड करने के भी ऑर्डर दे सकती है। If federal system powers and functions are divided among unit states and centers, it is the function of the judicial system to see that both the central and the state government carry out their own work without interfering with each other's work. कि फेडरल सिस्टम में जो पावर्स है, फंक्शंस है, तो उसको यूनियन स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जो भी फंक्शन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो ये जो फंक्शन और पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। मगर जुडिशियल सिस्टम का काम ये भी है यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर किए बिना काम करते हैं या नहीं करते, तो वो भी देखने का काम जो है तो जुडिशियल सिस्टम का है। When any dispute arise between the central and the unit state, then they are solved by the Supreme Court. यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सेंट्रल और यूनिट स्टेट जो है तो उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन देती है तो सुप्रीम कोर्ट से सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। The Indian judiciary is continuous and linear. At the top of the central level there is the Supreme Court. At the middle, at the state level there are high courts, and at the bottom level there are trial courts, civil courts, criminal courts, and various subordinate courts. कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है तो कंटिन्यूअस जुडिशियल सिस्टम है, जहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होती है, जबकि मिडिल लेवल पे हर एक स्टेट में हाई कोर्ट्स होती है, और सबसे बॉटम लेवल पे जो होती है तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स और दूसरी अलग अलग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है। So friend, in this chapter we have learned about the organs of the government. We have also learned about
the functions and powers of these organs, and we have also seen their formation of these organs. So here we have finished this lesson. I hope you understand very well. Thank you so much.